to be honest, set it up as a single GP. And then I've joined him as another GP. I think this thing happened at the right time for both of us. I used to realize this is not a one person's journey. I was always looking for someone younger with a lot more energy, a lot more enthusiasm, a lot more intelligence maybe. Maybe not so much wisdom or experience, which only comes with time, to be a partner to. And here we are, both of us doing this together now. So overview of deep tech environment. I don't think I'm going to take too much time on this. We talked about deep tech through the two panel discussions. We talked about the importance of it. But essentially, if I was to just read out the headers, tackles major world problems with breakthrough science, right? That's what we understood. Driven by convergence, okay? It's not a software program running in isolation. It needs a lot of convergence. Strong intellectual property moods, demands long-term high capex R&D. We talked about the importance of family offices, supporting that cause as part of that, and is underserved by traditional VCs, which are traditionally governed by this need to scale very rapidly and get exponential returns back to their investors, may not always be the right partners, and therefore, for us, this creates an opportunity. This is less crowded, and that's why Induct has chosen to be a deep tech and emerging technology or technology-led businesses fund. Sector focus, we touched on some of these, but this is a fairly comprehensive list of where deep tech comes into play: robotics, semiconductors, aerospace, advanced manufacturing, generative AI, Internet of Things, IoT devices, international artificial intelligence, genomics, very popular in genomics now, sustainable energy, green technology, chip, life sciences, blockchain. Each of these is a one-day subject in itself. So I'm just going to leave this slide with you. It's on the brochures in front of you. If you have any questions around this, feel free to ask. But also, although in the later part of the presentation, I'm sharing some of the investments that we made, where you will see the kind of returns that we are going to see in our personal capacity. This is not Induct's investment, these are investments in our personal capacity, which will be a subset of some of these themes. So why we believe in deep tech, understanding what the deep tech is all about. The first panel discussion talked about this 1 lakh crore scheme the government has launched, the importance of that. And this deck was created maybe 15 days ago. What is happening now, or what has happened in the last 24, 48 hours with how the Trump administration is kind of shrinking America within their own borders, doesn't want people coming in, doesn't want imports coming in, wants to build everything in-house. I think in that scheme of things, deep tech is something that we have to build on our own. China did a good thing of having WeChat for a WhatsApp of their own. We don't have anything like that. I think Jio tried at one point in time, but I don't think it's taken off in the same way as WhatsApp has, right? So there is stuff that we need to build on. Global supply chains, and we see that prioritizing India as an alternative to China. So alternative to China strategy, we've been there for a while, but I think one of the panels also said that we probably need to think beyond that, right? We need to be, in 10 years, 15 years from now, there should be somebody saying, we need to be an alternative to India, because India seems to be doing everything, right? The startup funding scene on the deep tech side has started to improve with 324 billion put into this area. The talent, right? So again, before the start of the event, we were having a discussion. Earlier, talent went where the capital was, right? That's why a lot of, at least people from my generation, and then continuing thereafter, went to the US, right? Because that's where the capital was. Now capital will come where the talent is. And now you're seeing geopolitically possibly accelerated, but this was supposed to have happened anyway, right? Because a lot of big companies chose to set up plants in where the talent is available, would go there themselves. So that trend was already on. With geopolitics, it's even getting accelerated. So the capital is chasing down the talent, and India has the largest pool of talent for this space. Early entry, strong IP, and chance to back the next wave. That's our position, right? Why do we want to play here? Because clearly we are so if there are 3 stages of a startup, 0 to 1,
1 to 10 and 10 to 100, we are a 1 to 10 player. Okay, why maybe at 1 or 2? That's where we want to invest, so that while at 10 somebody else will start to guide their journey, our gain will start on a 1 or 2 and can go right up to 100, right? So someone like a Sequoia or an Excel will pick up our investments, or a family office will say we want to merge this company and the company can grow from there, or the company will go IPO. So we are not a 0 to 1 player. We want to play deep tech and R&D and emerging technology game, but we don't want to be the ones who are defining the product or taking it to the market for the first time. When the product starts to sell is where Induct Ventures wants to come in and invest. That's the sweet spot we've chosen, and I'll tell you why. This is also our experience in a subsequent slide. Why we think that's actually really our core strength. So this is the fund. It's a 320 crore fund, 200 crore at the base, and another 120 crore as a green shoe option. 3 to 8 crores will be invested into each of the startups. 30 to 40 investments will be made, and 2 to 8 years is the exit time. I don't think we'll exit any investment, exceptionally maybe less than 2 years, but mostly we would like to leverage the long-term capital gain. Sponsor commitment between Ayush and I is 5 crores, and 1 crore is the minimum. आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत को एआई और डीप टेक, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम मौजूद हैं गोवा में, और हमारे साथ बात करने के लिए मनदीप जी हैं। मनदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आप लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जहां पर तमाम एंटरप्रेन्योर्स वहां पर आए और कई इन्वेस्टर्स भी आए जो अलग अलग जगह, जिन लोगों ने टेक कंपनीज या और कहीं भी इन्वेस्ट कर रखा है। क्या ये पूरा मॉरल था इस पूरे प्रोग्राम का जो मेट आप लोगों ने रखा? और सबसे बड़ी बात जो आपका मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था या पूरा उस जो एआई को लेकर आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं एआई के लिए, उसको कैसे, मतलब क्या डायरेक्शन में ले जाना चाहिए इंडिया को? देखिए, बहुत देर से एक ग्लोबलाइजेशन का थीम चला, जो अभी कुछ पिछले महीनों से लग रहा है कि वो थीम शायद इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा आते हुए समय में। तो आते हुए समय में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास लोग हैं। हमारे लोग क्यों बाहर के देश में, यूएस में, जहाँ पे कैपिटल है, वहाँ जाके काम करें? कैपिटल को हमारे पास आना चाहिए, ताकि जहाँ पे टैलेंट है वहाँ पे कैपिटल की यूटिलाइजेशन हो। कैपिटल की मूवमेंट इज़ लॉट ईजियर लोगों की मूवमेंट से ज़्यादा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कैपिटल हम लाते हैं और अवेलेबल है, पूरे दुनिया भर में अवेलेबल है, और दुनिया भर के जो देश हैं वो इंडिया की स्टोरी का पार्ट बनना चाहते हैं, कैपिटल लेके रेडी हैं, तो हमें यहाँ पे टैलेंट बनाना पड़ेगा जो उस कैपिटल को लेने का सक्षम हो। और उस टैलेंट के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में एआई, डीप टेक, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का एरिया है, जिसमें हमारी वैसे भी महारता है। स्टेम एजुकेशन में इंडिया सबसे आगे है। तो इसके ऊपर सारा डिस्कशन था कि वो हम चीज़ कैसे कर पाएंगे, उसमें फाउंडर्स का क्या रोल रहेगा, उसमें इन्वेस्टर्स का क्या रोल रहेगा, और वीसीज का क्या रोल रहेगा, फैमिली ऑफिस का क्या रोल रहेगा, और गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा। सो ऑल ऑफ दैट वाज डिस्कस्ड टुडे। एक चीज़ होती है कि आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा और वो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चल रहा है, इंडिपेंडेंटली चल रहा है, वो डीप टेक नहीं है। जब वो प्रोग्राम बाहर एक एक्सटर्नल चीज़ को, एक ड्रोन को प्रोग्राम करता है, एक किसी हेल्थ डायग्नोस्टिक डिवाइस को प्रोग्राम करता है, तो वो डीप टेक में कन्वर्ट होता है। तो इट इज़ द कन्वर्जेंस ऑफ समथिंग, हार्डवेयर डिवाइस विद टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, राइट? तो उस कन्वर्जेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस कन्वर्जेंस के लिए हमें दोनों तरह के लोग चाहिए, जो सॉफ्टवेयर समझते हों और जो भी हार्डवेयर है उसको कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को समझते हो। नाउ एआई इज़ बिकमिंग अ गेम चेंजर इन दिस। एआई इसलिए गेम चेंज कर रहा है क्योंकि जैसे आपने पहले आपको थर्मामीटर से ही सिर्फ टेम्परेचर चेक हो सकता था, अब एक मशीन आपके माथे की तरफ इशारा करके भी बता देती है, राइट? ये एआई का प्रोग्राम है। कल को क्या ये हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, आपको विदाउट गिविंग अ ब्लड ड्रॉप आपके स्टेज पे हो ऑफ एनी पर्टिकुलर डिजीज़, वो पता लग रहा है। वो कैसे पता लग रहा है? एआई के बेसिस पे पता लग रहा है। आपका स्ट्रेस लेवल क्या है इस वक्त,
ये एआई देख के बता सकती है आपके फेशियल रिकग्निशन को, क्योंकि उसने मिलियंस ऑफ फेसेस को देखा है। तो एआई वो ब्रिज है जो डीप टेक को प्रोपेल कर रहा है। एक चीज़ और, अभी मैं आपका जब से इस पूरे यहाँ प्रोग्राम में मैं था तो मैंने एक चीज़ देखी, जब आपने बहुत अमेरिका का जिक्र हुआ, चाइना का जिक्र हुआ, फिर भारत का जिक्र हुआ। भारत के लिए क्या था कि आपने जैसे एक एग्जांपल दिया कि चीन ने वीचैट बनाया, अमेरिका के पास सर्टन अपने सोशल मीडियाज़ हैं, भारत ने ऐसा नहीं किया। आपने एक एग्जांपल भी दिया कि जियो उस पर लगा था लेकिन नहीं हो पाया। ये चीज़ें लगातार मैं बड़े बड़े और भी कई लोगों से सुन चुका हूँ, पॉलिटिशियन से भी सुनी और एक दो लोगों से और भी मैंने सुना कि भारत के ही लोग चैट जीपीटी जैसे उस पर रिसर्च करके वो कहीं और किसी देश पे चल रहा है, लेकिन भारत के पास ऐसा क्यों नहीं है? तो आप कहाँ कमी मान रहे हैं इसको? देखिए, जो अंडरलाइंग चैट जीपीटी टाइप लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो बहुत इन्वेस्टमेंट से बनता है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ भारत की एज होएगी वो है SLM, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। आप चाहे चैट जीपीटी यूज़ करो, चाहे जेमिनाई यूज़ करो या कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है उसमें हमारे भारत के टेक्नोलॉजी के लोग बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। उसकी एप्लीकेशन हेल्थ केयर में होएगी, उसकी एप्लीकेशन एजुकेशन में होएगी, उसकी एप्लीकेशन फाइनेंस में होएगी और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उसकी एप्लीकेशन होएगी। वहाँ पे हम लीड कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म अभी आज ही के डिस्कशन में एक एग्जांपल था कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनीज़ ने इतना पैसा नहीं बनाया जितना कोका कोला ने रेफ्रिजरेटर को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को बेच के बनाया। तो अगर हमें कोका कोला की एग्जांपल लेके चलें तो हमें उस चैट जीपीटी को जो बन चुका है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसके ऊपर अपने स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स ऐसे डालने हैं ताकि वी कैन सॉल्व वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। हमारे साथ मौजूद है इंटेक्ट वेंचर के फाउंडर आयुष गोयल जी। बहुत बहुत स्वागत है आयुष आपका। और बहुत अच्छा लगता है कि एंटरप्रेन्योर इस तरीके से फाउंडर करके इतने बड़े इवेंट को बहुत सक्सेसफुली रन करा जहाँ पर इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आए हों और वो किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी और एज ग्रुप को अगर हम देखें तो उन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को बताया। बहुत अच्छा इवेंट। और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो इवेंट हुए और जैसे लोग आए? मुझे लगता है कि देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। अगर आप जितना टेक्नोलॉजी का डेवलप करोगे उतना ग्रोथ आएगा। अभी ट्रम्प ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके बाद भी तो देयर इज़ अ नीड ऑफ पीपल एंड टैलेंट यहाँ पे बहुत है इंडिया में। एंड गोवा जैसी लोकेशन पे आई गेस देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल जिसको टैप कर सकते हैं। तो हमारा फोकस यही था कि यहाँ पे आए हम लोग, वी ब्रिंग गुड पीपल हु कैन सी लुक एट द गोवा एंड यहाँ पे क्या क्या हम अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। सो दिस इज द कोलैबोरेटेड एफर्ट बाय द फैमिली ऑफिसेज, इन्वेस्टर्स एंड द कम्युनिटी पीपल, the ground level people basically. So I guess we can do a lot of things in the future together. आयुष, आपने ट्रम्प का जिक्र किया कि ट्रम्प एक बॉर्डर सेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई चीज़ बाहर ना जाए और कोई बाहर से यहाँ ना आए, इसको लेकर। और वहाँ पर जो लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इंडियंस बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं। तो क्या अगर वो लोग इंडिया का रुख करते हैं तो जो आप आज ये एक तरीके का समिट आपने कराया है, टेक समिट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो क्या इसमें बूस्टअप मिलेगा अगर वो लोग भारत का रुख करते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फोकस ही है कि राइट टैलेंट को इंडिया में लेके आना। जो इंडिया ने खो दिया है, जो आउटसाइड जाके वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, वो इंडिया में भी कर सकते हैं। दे हैव ए गुड नॉलेज, दे हैव ए टैलेंट एंड वो नॉलेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बट उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको। दे कांट कम एंड डू एनीथिंग, दे नीड अ गुड प्लेटफॉर्म। वो हम प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू इंटेक्ट वेंचर्स। तो हम इन्वेस्ट भी करेंगे, उनको कंपनीज को सपोर्ट भी करेंगे एंड वी विल ब्रिंग द गुड टैलेंट अलॉन्ग विद दैट। और ऐसे ऐप्स जो व्हाट्सएप है ये पहले भी बन चुके हैं और इंडिया से ही बन के गए हैं। यू डोंट नो, व्हाट्सएप का कॉन्सेप्ट इंडिया में ही बना था, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता। वो सपोर्ट हम देना चाह रहे हैं। जो गैप है उसको ब्रिज करना चाह रहे हैं थ्रू आवर इनिशिएटिव। तो अगर वो गैप फिल हो जाएगा तो इंडिया से जितने प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, टेक्नोलॉजी, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। जब भी बोला जाता है इंडिया एक जुगाड़ की कंट्री है, तो वो जुगाड़ से बेटर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वी आर द बेस्ट एट दैट। तो आई गेस अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो आई गेस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इंडिया का सोशल नेटवर्किंग आएगा। इवन मोदी जी ने भी कमेंट किया कि इंडिया को सोशल नेटवर्किंग की ज़रूरत है खुद के, और ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ऑलरेडी, बट उनको अभी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा गवर्नमेंट की साइड से, अब बूम आएगा उसमें। आज हम जब इस इवेंट में मौजूद थे तो हमारे साथ IIT जोधपुर से पास आउट हैं और जिस तरीके से इन्होंने कई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रखे पढ़ाई को लेकर,
पढ़ाई को किस तरीके से भारत में देखा जाता है और जो एग्जाम्पल्स दिए हमारे साथ मौजूद हैं राघव जी, इन्हीं से जानेंगे। राघव जी, आपने स्टडी की बात करें, एजुकेशन कह लें, एजुकेशन के लिए आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए कि भाई एक सर्टन पे आके आप सोचते हो बस डिग्री है। भारत में पढ़ाई को डिग्री से जोड़कर छोड़ दिया गया है। प्रैक्टिकल्स में नंबर्स कैसे मिलते हैं हमें सबको पता है, और किस तरीके से आप चाहते हो, टेक्नोलॉजी आ गई है अब। आपने एक जिक्र किया था कि जो हम लोग आईआईटी में कर रहे थे तो वहाँ पे एक देश का और आया था, तो वहाँ क्लास 6 में बताया तो कि इतना गैप है अगर, तो फिर तो बहुत दिक्कत है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इवेंट के लिए और हमको चूज़ करने के लिए। स्किलोनेशन किड्स आज के इस इवेंट का एक पार्टनर है। इंडेक्स वेंचर्स एक डीप टेक फोकस्ड फंड था, और जब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के कैंपेन्स की, गवर्नमेंट के सारे प्लान्स की, पॉलिसीज़ की, तो उसमें एडुकेशन को लेकर के भी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, एडुकेशन और इंडस्ट्री एकेडमिया के एक जॉइंट कोलैबोरेशन से बन के आता है। और रही बात हम जब बात कर रहे हैं डीप टेक्नोलॉजी की या इनोवेशन की, तो मेरे हिसाब से हमको बात करनी चाहिए आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग की, जिसके ऊपर हम बात कर ही रहे हैं, नर्चरिंग द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। हमारे कंपनी का मोटो विजन यही है, नर्चरिंग आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। अब ये क्या है, मिलियन सॉ द एप्पल फॉल बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई। तो सेब सबने गिरते हुए देखा है, बट सिर्फ एक ने पूछा कि क्यों गिरा, और उस वाई से जो है सारी डिस्कवरी आगे होती है। वो वाई, वो जो क्यूरियोसिटी, वो क्वेस्ट हमको आगे के लिए चाहिए है, पढ़ाई के अंदर चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम मोनोटोनस है। हम आईक्यू के ऊपर फोकस करते हैं, बट इमोशनल क्वेश्चन, क्रिएटिविटी क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम फोकस नहीं कर पा रहे, जिसके कारण शायद हम जब आगे बढ़ते हैं कॉलेज के बाद में, तो हम देख रहे हैं कि इनोवेशन इंडेक्स में हमारा नंबर थोड़ा सा पिछड़ रहा है। अभी हालांकि 2-3 विगत वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारतीय सरकार हो चाहे समाज हो, सबकी एक थिंकिंग बनी है, एक रिसर्जेंस आया है कि हाँ, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इम्पैक्ट क्रिएट करना, यानी प्रॉस्पेरिटी को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो प्रॉफिट जो है वो अपने आप फॉलो करेगा। शायद ये हमारी दिशा है, हमारी जो है वो कोशिश है कि हम यहाँ पर चीज़ों को मोड़ें। जी, हमारे साथ इंडल्ज की को-फाउंडर मैम मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज टीवी में। ऐसे ब्रांड्स और ऐसे देख के जब मन करता है तो कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया पे जाके हम देख सकते हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को हम उनको यूज़ करना चाहें या उनसे देखना चाहें। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन एक बार और दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ हो जाए। बिल्कुल। तो हम एक प्राइवेट कॉन्सियाज रन करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिविजुअल्स जैसे कैश रिच होते हैं वो टाइम पुअर बन जाते हैं, और क्या हम उन्हें एक डेडिकेटेड ऐसी टीम दे सकते हैं जो उनके पर्सनल लाइफ को टोटलिटी में कवर करे। तो हम 180 देशों में हमारा प्रेजेंस है इन टर्म्स ऑफ अनलॉकिंग सर्विसेज के अंडर आता है आपका ट्रैवल है, रिटेल है विच इज़ योर वॉचेस एंड बैग्स, उसके बाद आपके रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस है, हाउसिंग इज़ अ बिग स्पेस, राइट। तो आपके नानीज़ है, शेफ्स है, गिफ्टिंग इज़ अगैन अ बिग पार्ट, राइट। मदर्स डे होता है, अभी दिवाली आ रही है, थिंग्स लाइक दैट। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपके टॉप ऑफ द माइंड होता है बट आपके पास जेन्युइनली टाइम नहीं है वो कवर करने के लिए, या उतना स्पेस नहीं है उस एक्सेस को पुश करने के लिए, वहाँ आप इंडल्ज की सर्विस आप यूटिलाइज करते हैं। तो वो 24/7 सर्विस है विच इज़ ऑन व्हाट्सएप। सो लेट्स से यू ऑन द मूव, यू कैन लीव अ वॉइस नोट टू से अरे यार, आई एम एंटरिंग अ इवेंट, मुझे एक फ्लावर बुके चाहिए, कैन यू जस्ट सेंड इट अक्रॉस। सो इस तरह का ईज़ ऑफ कन्वीनियंस एंड वेरी हाई ऑक्टेव ऑपरेशंस इज़ व्हाट वी ऑफर। अच्छा, इंडिया में इस तरीके की चीज़ को रन करना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि अभी मैं आपको सुन रहा था तो मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये कोई छोटा वेंचर नहीं, लेकिन इसको कैसे रन करने में क्या कुछ दिक्कतें आती है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर कोई छोटा सा ही स्टार्टअप इस तरीके करना चाहे तो? ऑफ कोर्स एक्सटेंसिव इश्यूज है, क्योंकि आपको हर देश का कल्चर कॉन्टेक्स्ट समझना है इन ऑर्डर टू अनलॉक विद देम। हम लोगों ने भी ये सीखने के लिए वी डिड एन इंडिया टूर, यानी कि वेल्थ इज़ ओनली नॉट इन Tier 1 Tier 2 सिटीज़, राइट। हम कोची, कोयम्बतूर, भुवनेश्वर गए, हम पूरा देश भर के घूमे कि अरे उनकी परिभाषा क्या है। हमारा रिच और वर्ल्ड का रिच हमेशा कॉन्टेक्स्ट सेम हो ज़रूरी नहीं है, राइट। इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, आप अगर साउथ में जाएंगे, चेन्नई में देखेंगे, दे विल नॉट वेयर दीज बिग वॉचेस, बट उन्हें कार्स का बहुत शौक होगा। वर्सेस आप दिल्ली में जाएंगे तो उनके वेल्थ की परिभाषा बहुत अलग होगी। तो फर्स्ट इज़ दिस बेसिक एजुकेशन जो अपने आप में बहुत टाइम लगाता है। सेकेंड ऑफ कोर्स इज़ योर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ डू यू अनलॉक दीज थिंग्स। सो लेयर्स तो है, टेक्नोलॉजी है, यूजेज है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो बहुत ही सारे लेयर्स। और आपको हर डोमेन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिर्फ रिटेल में भी 100 चीज़ें हैं, राइट। वॉचेस भी है, बैग्स भी है, सिमिलरली रेस्टोरेंट में भी है, फूड की समझ होना, उसके बाद हर कंट्री की अपनी कल्चरल समझ होना, ये सारी चीज़ों का अमालगमेशन जब बनता है फिर उसको, और ये बहुत डायनामिक है, नो टू रिक्वेस्ट आर द सेम। ये पूरे डायनामिक बिहेवियर को एक प्रोसेस में कंडेंस कर पाना
सो इट्स अ लॉट ऑफ दैट, राइट? तो दोज आर सर्टन चैलेंजेस जो हम धीरे धीरे ओवरकम करते हैं, मतलब काफ़ी हद तक आ गए हैं, और देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन हाउ यू कैन एनहांस अ सर्विस, एंड वी कंटिन्यू टू डू दैट। आज एक इवेंट हुआ जहां पर आप मौजूद थे इस इवेंट को लेकर, क्योंकि डीप टेक के बारे में था और थोड़ा एआई, और आज के युग का एआई आपको भी पता है किस तरीके से कहाँ यूज़ होना था और कहाँ यूज़ हो रहा है। थोड़ा उस तरीके को आप कैसे देख रहे हैं आज के प्रोग्राम को? मैं हमेशा से कहती हूँ टेक्नोलॉजी इज़ अ टूल, इसमें अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप आज आके बोलते हैं कि मेरी कंपनी इंटरनेट कंपनी है? नहीं, हर कंपनी को इंटरनेट यूज़ करना पड़ता है। सिमिलरली अब तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, हम भी बहुत डीपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर को तो यूज़ करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। इट जस्ट बूस्ट्स यू अप इन कैपेसिटीज़ दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन, राइट? तो इन टर्म्स में टेक्नोलॉजी का तो यूज़ किया जाता है। द एंड गोल आपको समझ में आना चाहिए, वरना आई लाफ अ लॉट टू सेइंग कि अगर आपको खुद का क्लैरिटी नहीं है तो यू विल यूज़ द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द मोस्ट प्रिमिटिव थिंग। तो आप देखोगे कि आदमी जीपीटी बना के उससे भी एक फेक डेटिंग बनाना चाह रहा है उसमें भी। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट, आपको सॉल्व क्या करना है, क्लियर नहीं, जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है वो टूल्स दे विल जस्ट कीप थ्रोइंग नेम्स, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। बट आई थिंक anybody independent of, I mean, sector agnostic should just go ahead and learn artificial intelligence. It is not just here to stay, it will change almost anything and everything, right? आपके अवतार से लेके इन्फ्लुएंसर्स से लेके रिपोर्टर्स तक, वो हर चीज़ को आज इम्पैक्ट कर रहा है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ नॉन नेगोशिएबल इन टूडेज वर्ल्ड, इट विल सेटल इन टू आवर लाइव्स। इंडेक्ट वेंचर द्वारा कराया जा रहा है इवेंट में हमारे साथ मौजूद डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप, अगर हम बात करें किस एक संस्था को रन भी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए, उसका नाम भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद मौका देने के लिए। मेरा नाम आशुतोष है और कंपनी मैं रन कर रहा हूँ, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, कर्मा लैब के नाम से। हम लोग एआई और बहुत सारे डीप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और गोवा आए हैं इंडेक्ट वेंचर के इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने। और कंपनी बहुत सारे स्पेस में इकोसिस्टम, स्टूडेंट्स के लिए एचआर स्पेस में काम कर रही है। और इस इवेंट से हेल्प मिला कि बहुत सारे लोगों तक पहुंचने तक, अपनी बात बताने तक, सोल्यूशन क्या है। और होपफुली ये जब और लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत सारे और लोग इंटरेस्ट होंगे। और तो इतना कर्मा लैब, हम लोग बहुत सारा इनोवेशन, बैकग्राउंड मेरा टीचिंग का है। मैं टीचिंग करता था पहले शिवनाथ, और उसके पहले आईआईटी जोधपुर, और पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर इन एआई। सर, आप कर्मा लैब की अगर हम बात करें तो एआई और डीप टेक की बात कर रहे हैं। एआई आज के युग में बहुत ज़रूरी अंग बन चुका है हर किसी के लिए, वो किसी भी क्षेत्र में हो। अगर अभी की हम बात करें, क्या भारत में एआई का सही उपयोग हो रहा है? अगर आप भारत या बाहर के भी ओवरऑल एआई का यूज़ देखें तो उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग डिपेंड करता है उसको कैसे और कौन किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। एआई में पोटेंशियल है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, पर एआई का दुरुपयोग भी हो रहा है। अब जैसे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि किसी की गलत फ़ोटो बना दी, बहुत सारी फ्रॉड खबरें प्रसारित कर दी, तो वो दुरुपयोग के उसमें आता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग से ही वो स्टार्ट होती है सबसे पहले। अब गवर्नमेंट और लॉ मेकर और पॉलिसी को डिपेंड करना है कि उसका सदुपयोग की तरफ जाए। तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं जिसको अगेंस्ट आ रहे हैं। तो एआई के अंदर कोई खामी नहीं है, लोग जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनके इंटेंट का थोड़ा सा है कि कुछ जल्दी पैसा बनाने के लिए, कुछ पैनिक फैलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। पर एआई में पोटेंशियल है, बहुत टाइम तक लोगों की हेल्प करने के लिए है, बस उसका उपयोग और को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सर, एक लास्ट सवाल, साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी भारत में लगातार हमने देखा कई तरीके से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होते रहते हैं। अभी हमने टाटा कार्स को लेकर देखा कि उनके एक पूरे सर्वर को हैक कर दिया, काफ़ी जगह दिक्कतें हुई। तो इसको लेकर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ कुछ बननी चाहिए। क्या आप लोगों से चर्चा होती है? क्या आप लोगों से सरकार ने कभी? हाँ, उसके लिए साइबर सिक्योरिटी, जैसे जैसे हम डेटा ड्रिवन सिस्टम में जा रहे हैं, डेटा एक्सचेंज बहुत हो रहा है, तो जाहिर है कि आपका स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी लॉ आना चाहिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने डेटा सिक्योरिटी लॉ पास किया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन को लेके, उसकी अवेयरनेस को लेके कुछ और कैंपेन चाहिए होंगे जो नीचे तक जाएं।
कंपनीज बहुत सारे वजह से साइबर सिक्योरिटी लॉ जैसे जीडीपीआर है यूरोप में रेगुलेट नहीं कर पा रही हैं कि उनका कॉस्ट भी अटैच है। तो अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एडवाइजरी का कॉस्ट कम आता है तो हो सकता है कंपनीज उसको एडवाइस लेने में मदद करें और उसको रीचेबल बनाते हैं। पर हाँ, एक रियल थ्रेट तो है साइबर सिक्योरिटी के लेके और गवर्नमेंट धीरे धीरे एफर्ट कर रही है उसको मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए, चाहे वो फॉल्स लिंक वाला हो, चाहे वो बैंकिंग फ्रॉड हो, पर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आ गई है और उसको रेगुलेट करने का काम पीछे चल रहा है, तो गवर्नमेंट भी फास्ट पेस कर रही है। ठीक है, चलो। तो ये थे डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जिन्होंने बताया कि एआई में दिक्कत नहीं, दिक्कत है उसे यूज़ करने में। आप कैसे यूज़ कर रहे हैं एआई को, ये एक बड़ा विषय है। तो यही हम आज इन्वेक्ट वेंचर्स के जब हम इस इवेंट में आए तो हमें कई लोग मिले और उनसे जब हमने चर्चा की आज की टेक्नोलॉजी पे एआई के किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो हमें सबसे अलग अलग चीज़ें सीखने को और जानने को मिली जो बताती हैं कि भारत में प्रतिभाएं बहुत हैं और भारत में किस तरीके से एआई या डीप टेक के जरिए अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कैमरा पर्सन दिनेश सैनी के साथ विशाल पंडित, राष्ट्र टीवी।